Okay, students, now let us begin with our lecture. Everybody, please on your cameras. Akansha, Siddhant. Hello. Yeah. What happened, Siddhant? नहीं, मुझे लगा कि आप कुछ बोल रहे नहीं, मैंने बोला सबके सब कैमरा ऑन करो पहले तो. हो। हाँ अगर हाँ. Akansha, where are you, बेटा? हाँ. Yeah. Okay, guys, how are you, everyone? Yes, I'm fine. Yeah. Okay. Okay, guys, let's begin with the lecture. All right, guys, I have said you to refer something, right, from your test book. In the last lecture, which we have completed with the hemophilia, color blindness, आपने ये सब देखा, autosomal inheritance देखा आप लोगों ने? Yes, ma'am. देखा, कुछ doubts है इसमें आप लोगों को? No, ma'am. Ma'am, सिद्धांत, can you leave me 15 minutes early? I have to go out today. okay, at 7:30. No, 15 minutes. Okay, okay, fine. Okay, means at 7:45. Yeah. Only give me the reminder. That's it. You tell me, I'll leave. Okay. Okay. Yeah. All right. So, guys, do you have any kind of in doubt? क्योंकि मैंने आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ने बोला था, ये वाली चीज आप सबने पढ़ा? हाँ Okay. मैम। Okay. Okay. Akansha, beta, you got the chapters of your exam, or your exam is done? I can't hear you, bacha. What happened? Hello. Yeah. Now I can hear you. Yeah, ma'am. We didn't get the syllabus only. Okay. All right. Okay. So you people know tomorrow we are having test, right? Yes Yes. मैम। Yes, Two ma'am. chapters, that is reproduction in lower and higher plants, and second one is our human health and diseases. Both the chapters you have to be ready with that prepared, be prepared. Okay. And I'll be keeping a diagram test also. Okay, that I'll be letting you know. आपको एक चीज पता है, बायोलॉजी के इसमें जहाँ कहीं भी डायग्राम नेसेसरी है वहां पे आपको बनाना है, भले ही मैंने मेंशन नहीं किया होगा फिर भी आपको डायग्राम बनाना है गाइस. ओके, and study well, write your paper well. Okay, it is going to be easy, don't worry. All right. Yes, regarding the autosomal inheritance, in the last lecture we have studied what is the meaning of an autosomes, guys. There are the 23 pairs of n chromosomes, right? From that there is in 22 pairs and one which is remaining, that is our sex determination chromosome, right? And all these characters are passed on from whom? Parents to offspring. ओके, थ्रू दी ऑटोसोम्स मतलब क्रोमोसोम्स के थ्रू क्या होता है, पास ऑन होता है. अब जो कोई भी ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के वजह से जो डिजीज हो रहा है, जो डोमिनेटिंग ट्रेट्स में है, जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स के वजह से होता है, ऑटोसोम्स के वजह से, दैट इज व्हाट, व्हिच डिजीज इट इज, विडोस्पिक एंड हंटिंगटन्स डिजीज. Whichever it is due to autosomal recessive traits, it is what, phenylketonuria, which we called it as an PKU, cystic fibrosis and sickle celled anemia, right? इसके लिए हमने widow's peak पढ़ा था last lecture में. Even we saw about a widow's peak that whosoever have a V-shaped hairline, बराबर, what it is, V-shaped hairline, not a straight hairline, right? So what happened in this widow's peak? What it is always that what, whichever dominating gene is present, it will always express its own self rather than recessive. Then we saw about a phenylketonuria. Phenylketonuria is occurring due to the metabolism. Metabolism में disturbance होने की वजह से ये phenylketonuria होता है. Which of the chemical is decreased in this metabolism? That is amino acid phenylalanine. बराबर, इसकी वजह से क्या होता है, phenylketonuria होता है. And this is one of the inborn diseases. ओके, बचपन से ही, पहले से ही ये क्या होगा, ये PKU डिजीजेस प्रेजेंट होगा.
and this is what? This is a genetic disorder. Okay, this is passed on from one generation to the another. Then this PKU is not untreated. You cannot treat it. Okay, you can take a medicines, you can fulfill that केमिकल का थिंग. ओके, आप मेडिसिन थ्रू उसका फुलफिल कर सकते हो, लेकिन आप उसे ट्रीट नहीं कर सकते कभी भी. ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है PKU, दैट इज फिनाइल कीटोयूरिया, इज नॉट क्यूरेबल. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट? उसके बाद हमने ये सारी चीजें इमेजेस देखी थी. देन वी वेंट टुवर्ड्स द कलर ब्लाइंडनेस, how the color blindness disease has been passed on from mother to child, father to child, isn't it? Then we went towards hemophilia, which we called it as an bleeder's diseases also. Okay, क्या आप सब लोगों ने क्रॉसेस देखा, क्रॉसेस पढ़ा आकांक्षा एंड सिद्धांत? क्रॉसेस में कुछ डाउट Yes, है? ma'am. No. Doubt है कुछ? Okay, all right. Whenever it is asked into an exam, see to it. If it is of more marks, show the cross also. When I'll take a test, I'll put this question so that you can draw a cross of that. Okay. Now let us see about a sex determination. How will you determine a sex? Now in a human cell, okay, how much does it contain? अगर आप एक-एक individual chromosomes के हिसाब से देखते हो, तो ओवरऑल 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन उसी क्रोमोसोम्स को अगर मैं पेयर में अरेंज कर दूं, सो इट इज व्हाट? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. बराबर, पेयर के हिसाब से 23, उस पेयर को सेपरेट कर दो, इंडिविजुअल कर दो, तो वो होगा 46 क्रोमोसोम्स. Now in this chromosomes, in this human beings, chromosomal mechanism, how the sex determination is done? The sex determination is done from XX and XY, isn't it? अब हमें पता है कि ये XX है, we call it is present into a female, and XY is what? It is an male. Now of this, 22 pairs are of the autosomes, which are responsible for our body characters, and one pair of the chromosome plus one, बाकी है ना, अभी 23 होता है हमारे पास, तो 22 क्या है? ऑटोजोम्स है, जो हमारे बॉडी कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो वन पेयर है वो कौन है? हमारा सेक्स क्रोमोसोम है. वो क्या करेगा? वो सेक्स डिटरमाइन करेगा, whether that fetus is what? Baby girl or baby boy. Understood? समझ में आया यहाँ तक? अब इसी सेक्स क्रोमोसोम को आप एलोसोम्स भी कहते हो. क्या कहते हो उसे? एलोसोम्स भी कह सकते हो. All right. In females, two homomorphic sex chromosomes are present. Homomorphic क्यों कहा गया है बेटा? Because ये दोनों भी देखो, दोनों भी XX है, सेम है ना? सेम माने what? Homo, right? XY means it is different. So in male, it is consisting of two heteromorphic sex chromosomes, means it is XY. Thus, the genotypic of male and female is, मतलब आप male and female के genotypic कैसे करोगे? Genes कैसे arrange करोगे guys? That is 46 chromosomes. In 46 chromosomes, 45 are autosomes, and the next two are the sex chromosome. That is, ये X को count करके 45, ये दूसरे X को count करके 46. मतलब कितना chromosomes हुआ आकांक्षा एंड सिद्धांत? 46 chromosomes. अगर मैं यहाँ पे पेयर लिखती तो 22 ऑटोसोम्स प्लस 1, दैट इज 23. सो ये जो वन पेयर है उसको आप क्या कहोगे? सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम. सेम थिंग हैपेंस इन मेल्स. 46 chromosomes, 44 autosomes plus 1 XY we will determine as an sex chromosome. Now ये mechanism कैसे होता है? How does this mechanism is happening into a sex determination? So first sex determination which we are going to study, that is into a human beings. Means हम human beings में कैसे होता है, right? Now in हम human beings में the human male is heterogamete. क्यों कहा गया है heterogamete? इसे कोई मुझे बताएगा? XY. Yes, it is an XY. बराबर. Okay. Now this XY heterogamete produces two types of sperms. Okay. In human male में दो type of sperms produce होता है, XY. Okay. So one type of sperm contain 22 autosomes. Okay. एक type of these sperms में क्या है? 22 autosomes.
and one X chromosome, and other type of sperm contain 22 autosomes and one Y chromosome. मतलब ये जो हमारे ऑटोसोम्स है एक्स वाई है, बराबर है कि नहीं? तो एक्स जो हमारा प्रेजेंट है, एक्स में कितना होगा 22 ऑटोसोम्स, और वाई क्या है, वाई सिर्फ एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। समझ में आया? अंडरस्टूड? वाई विल नॉट बी फंक्शनल। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था सेक्स लिंक्ड जीन। सेक्स लिंक जीन में मैंने आपसे कहा था कि क्या है, वाई हमेशा क्या कहता है एक से, तुम बड़े हो, तुम्हारा साइज बड़ा है, यू आर जेनेटिकली मोर एक्टिव, सो यू आर यूक्रोमैटिन। आई एम लेस, मेरी जगह ही कम है, मैं हेट्रोक्रोमैटिन हूँ, मेरे पास जेनेटिक मटेरियल ज्यादा नहीं है, तो कैसे होगा मेरा? तो वो क्या कहता है, मेरे पास कोई मटेरियल तुम मत दो। वाई क्रोमोसोम ऑलवेज सेज टू द मेल, डोंट गिव मी एनी काइंड ऑफ मटेरियल, you keep everything with you itself. Okay, so इसीलिए X is what? X is always having all of those autosomes, and Y is what? Y is sitting ideal. इसीलिए क्या कहा जाता है, in female the X is recessive, one X is recessive and one X is dominating. Okay, तो एक X अगर recessive है तो वो फंक्शन करने भूल जाएगा, तो दूसरा तो X है जो हमारा फंक्शन कर सकता है, बराबर? मैंने ये आपको सिखाया था। लेकिन व्हाट अबाउट द मेल? मेल के पास कोई चांसेस नहीं है, सारी चीजें एक्स को ही परफॉर्म करनी है। अंडरस्टूड? व्हाई? द रीजन वन इज व्हाट? ओनली हैविंग वन एक्स क्रोमोसोम, and Y is like, I don't want to function, you see of your own self, I am small, I am not going to act anything. समझ में आया? लेकिन बोलते वक्त हमें कहना है एक्स वाई क्रोमोसोम। अंडरस्टूड? Now coming towards a female, the human female is homogametic. Why homogametic? Because उनके पास है XX, okay, and produces only one type of an egg containing 22 autosomes and one X chromosome. मतलब दोनों भी X है, तो एक जो उनका X है, one X type है, that is what? वही X cell है, okay, जो X cell है वही 22 ऑटोसोम्स कंसिस्ट करेगा, और एक एक्स क्या बोलेगा, मैं ऐसे ही शांति से बैठूंगा, अगर इस ऑटोसोम में, इस एक्स में, ये एक्स सेल में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं फंक्शन करूंगा, वरना मैं फंक्शन नहीं करूंगा, मैं चुपचाप देखते रहूंगा। इसीलिए फीमेल्स में क्या होता है, अगर ये एक बर्बाद हो जाता है तो दूसरा आता है आगे फंक्शन करने के लिए, लेकिन मेल्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स जीन है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई है। समझ में आया? आकांक्षा अंडरस्टूड बेटा? सिद्धांत समझा सबको? ओके, यस यस। नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गाइस, इफ एक्स कंटेनिंग स्पर्म fertilizes the egg having X chromosome, ओके, अब मेल के पास क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स क्या है, सारी फंक्शनिंग का झमेला उठा के बैठा है, तो वही एक्स जो झमेला उठा के बैठा है मेल का, उसी के पास स्पर्म का भी कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, तो जो ये एक्स है मेल का स्पर्म वाला, वो जाके फर्टिलाइज करता है ऐसे एक्स को जिसके पास क्या है, एग सेल है, और वही फंक्शनल स्टेज में है फीमेल का, ओके, तो क्या होगा, द ऑफस्प्रिंग विल बी एक्स एक्स, मतलब वो फीमेल किसको बर्थ देगी, बेबी गर्ल को। Ma'am, so like one X chromosome is there in 22 autosomes. हाँ, And one X is single. yes. So like if the sperm, like the X containing sperm will fertilize with like 22 autosome one X or नहीं, ये देखो अभी, हाँ, दिस इज अ फीमेल, दिस इज अ मेल, ओके, ये मेल के पास एक्स वाई है, आकांक्षा बराबर है कि नहीं? वाई खाली बैठा है, वेला बैठा है, वो उसको कोई कुछ काम नहीं करना, हाँ। एक्स क्या है, एक्स के पास, एक्स ने बोला मैं सारा काम करूंगा, मेरे पास स्पर्म भी है, 22 ऑटोसोम्स भी मैं ही हूं, ऐसा, ओके। ये कौन बोला, ये मेल का बोला, फीमेल है ये मेरी, तो ये मेरी जो फीमेल है इसके पास एक्स एक्स है, तो ये जो मेरी एक फीमेल है उसका एक्स ऐसे ही शांति से बैठा है, ओके, दूसरा एक्स क्या कर रहा है, वही ऑटोसोम है और वही एक्स सेल है, हाँ,
तो जब इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में, जब पॉपुलेशन होता है, राइट, तो वो होते वक्त क्या होता है, जब ये मेल जिसके पास जो एक्स है, जिसके पास स्पर्म भी है, ऑटोजोम्स है, वो फीमेल के उस एक्स को जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। कौन से एक्स को? जिसके पास एक्सएल भी है और 22 ऑटोजोम्स भी है। तो कौन पैदा होगा? लड़की पैदा होगी। समझ में आया? अंडरस्टूड? क्योंकि एक्स ने ही जाके क्या किया, एक्स को ही फर्टिलाइज किया। समझ में आया? अंडरस्टूड? ऐसा होता है। लेकिन इफ Y containing sperm fertilizes the egg having X chromosome, then it results offspring XY chromosome. Okay? मतलब ये जो हमारा स्पर्म का जो Y वेल्ला बैठा हुआ है, बराबर, वो अगर क्या हुआ, वो जाकर फर्टिलाइज किया X क्रोमोसोम को। ओके, फीमेल का X वैसे ही रहेगा, जिसके पास एग सेल है, क्रोमोसोम है, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर मेल के Y ने जाकर उस X को फर्टिलाइज किया, तो कौन होगा पैदा? बेबी बॉय। सो वी कैन कॉल इट एज एन XY। अंडरस्टूड? तो आप यहाँ से खाओ या फिर वहां से खाओ, फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फॉर गिविंग बर्थ ऑफ द चाइल्ड ऑफस्प्रिंग, द मेल इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, because it depends upon the male. From the male, which of these sex chromosomes are entering into the genital tract of the female, and after entering into the genital tract of the female, to whom it is getting fertilized into the ovum. समझ में आया? अंडरस्टूड? समझ में आया क्यों ऐसे बेबी गर्ल और बेबी बॉयज पैदा होते हैं? अभी समझा तुम लोगों को? अंडरस्टूड? एनी काइंड ऑफ इन डाउट क्लियर? ट्विंस की बात नहीं कर रही, ट्विंस की बात टोटली डिफरेंट कंडीशन है, दैट आई टीच यू इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन. हाँ, I'll teach you, but I'll teach you in the human reproduction how the identical twins are produced and how the different twins are coming. Understood? Okay? लेकिन ये समझ में आपको कैसे बेबी गर्ल और बेबी बॉय बर्थ हुआ? Okay? Yeah. Now let us move further. अभी इसमें ना, this cross is what it is showing. ये cross वही बता रहा है, that is it is indicating. What does it indicating? This cross indicates that sex of the child depend upon the type of the sperm fertilizing the egg. मतलब X पास हो रहा है कि Y पास हो रहा है? समझ में आया? तो ये क्या है, मेल पे डिपेंड है कि मेल कौन सा ये भेज रहा है स्पर्म के तौर पे, कौन सा है वो, X वाले स्पर्म है या फिर Y वाले स्पर्म है. Understood? And thus father is responsible for sex of the child, not the mother, because father always sends the what, that father sends the sperms, isn't it? Mother is constant. Ovum is what? Ovum is constant. Ovum requires something to get fused. समझ में आया? Understood? फादर के पास XY है, मदर तो होमोगैमेटिक है. समझ में आया सबको? अंडरस्टूड? तो इसकी वजह से ये चीज कही जाती है. Chromosomal mechanism of sex determination is called as an heterogamesis. It may be male heterogamy and female heterogamy. हम इसे heterogamesis क्यों बुलाते हैं बेटा? क्योंकि मेल के पास भी दोनों अलग अलग ये होता है, और जब फीमेल के अंदर ये सारे गैमेट्स जाते हैं तो फीमेल भी क्या होती है, हेट्रोगैमेटी हो जाती है. अंडरस्टूड? समझ में आया? किसी को डाउट है क्यों मेल हेट्रोगैमेटी बोला और फीमेल हेट्रोगैमेटी बोला? मेल क्या है, हेट्रोगैमेटी XY है उसके पास, वो पहले से ही XY में है, दोनों भी अलग अलग है. लेकिन फीमेल का क्या होता है, फीमेल होमोगैमेट्स कंसिस्ट करती है. लेकिन जब कभी भी कॉपुलेशन होता है, राइट, whenever there is a sexual intercourse, so the thing is that when the sperms enters into the female genital tract, what happen, it becomes heterogamy. बराबर? क्योंकि हमें पता नहीं है कि स्पर्म्स में XX ट्रैवल कर रहा है या YY ट्रैवल कर रहा है. समझ में आया? आकांक्षा, समझा आप लोगों को? कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछो. Yes guys, any kind of in doubt, please do ask. No, ma'am. Akansha? No, ma'am. Now this thing, if you can observe this process, this is in parents. I have took father and mother.
ओके फादर डैडा का मैंने XY रखा जो मेल गैमेट्स होते हैं, मम्मा का मैंने XX रखा जो फीमेल गैमेट्स होते हैं. I always tell you there is in separation of the gametes, that is in segregation, बराबर. For what? For exchanging of a genetic material. तो यहाँ से X और Y सेपरेट होगा, यहाँ से XX सेपरेट होगा. अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. This X has been crossed with the mother X. डैडा का X ने क्रॉस किया मदर के X के साथ, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया? XX. Again this cross, father ka X has been crossed with mama ka X, so we got again XX. So 50% we got our daughters. Now this Y has been crossed with mama's X. Okay, मतलब ये Y क्या है? ये Y ने जाके fertilize किया मम्मा के X के साथ. Okay, तो क्या हुआ? XY मतलब baby boy. वैसे ही अगर सेकेंड टाइम भी हुआ वैसे ही, तो क्या हुआ? पापा के Y ने ओके जाके फर्टिलाइज किया मम्मा के Y को, तो वापस क्या बना? XY. तो क्या होता है? ऐसा नहीं होता है 10-20% डिपेंड अपॉन 10% गर्ल 20% बॉयज, ऐसा नहीं होता है. 50-50% होता है. All right, always there is a 50-50% chances. इसलिए whenever now you people have saw the Three Idiots movie, right? In that Three Idiots movie, it has been shown that there are the millions and trillions of sperms are passed at a time into a female genital tract. Okay, और उस genital tract में वो sperms क्या करते हैं? They all are under a racing. Only one get fuses. Okay, क्या होता है? Only one is fusing that ovum. Isn't it? बराबर है कि नहीं? तो एक ही फ्यूज करने वाला है, राइट? अब ये जो एक फ्यूज करने वाला है, वो जो स्पर्म है वो डिपेंड है, वो एक्स है कि वाई है? ओवम तो ऑलरेडी अपने एक्स कंडीशन में ही है, हाँ या नहीं? बराबर. तो ये क्या होता है? ये 50-50% चांसेस होते हैं बेटा कि आइदर डॉटर होगा या फिर सन होगा. ओके, इट इज नॉट, इसलिए क्या किया? दैट्स व्हाई इट हैज बीन मेंशन्ड दैट द father is responsible for the sex of the child, not a mother. Understood? Because mother के पास already homogametes है, she is in the constant condition, उसको कहीं पे कुछ भेजना नहीं है. समझ में आया आकांक्षा एंड सिद्धांत? ये टर्म क्यों मेंशन किया और क्यों हमने मेल को हेट्रोगेमेटी बोला और फीमेल को हेट्रोगेमेटी बोला, ये भी समझ में आया दोनों को? ओके, राइट. Let us move further. How this sex determination is carried out in our honeybee. अब इतना human beings में हम देख रहे हैं, तो honeybee में कैसा होता है? In honeybee, sex determination is done by the number of sets of chromosome. जैसे हमारे अंदर number of sets of chromosome होते हैं, वैसे ये honeybee के अंदर भी होते हैं. It is received by an individual such as type of sex determination. अब इनके सेक्स डिटर्मिनेशन को आप क्या बोल सकते हो बेटा? वी हैव टू कॉल इट एज एन हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम. हनीबी के सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम को आप क्या बुलाते हो बेटा? हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम. हमारा सिस्टम कौन सा है? हमारा डिप्लॉइड सिस्टम है. हम डिप्लॉइड है कि नहीं? हम अपने मम्मी डैडी से बने हुए हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं एक ओवम इंडिविजुअल रख दूं तो वो हैप्लॉइड है, एक स्पर्म को इंडिविजुअल रख लूं तो वो हैप्लॉइड है. लेकिन स्पर्म और ओवम जब साथ में मिलते हैं तो डिप्लॉइड में होते हैं. बराबर. वैसे ही हनीबी में कैसा कंडीशन है? हैप्लोडिप्लॉइड कंडीशन है, राइट? व्हाट हैपन इन दिस? इन दिस द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ फीमेल ऑफस्प्रिंग. ओके, हमेशा जितने कितने भी जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, मतलब जो एग का फर्टिलाइजेशन हुआ रहता है, वो हमेशा फीमेल बच्चे बनेंगे. समझ में आया? वापस बोल रही हूँ, जितने कितने भी एग फर्टिलाइज हुए रहते हैं, फर्टिलाइज मतलब स्पर्म्स ओवम से फ्यूजन से बने हुए रहते हैं. बराबर, मतलब उसमें से ऑफस्प्रिंग आने वाला है, तो वो कौन है हमारे? वो हमारे हमेशा फीमेल होंगे. ओके, तो वो फीमेल कौन होगी? आइदर क्वीन भी बनेगी या फिर वर्कर भी बनेगी. ऑलराइट, समझा ये फर्स्ट पॉइंट आप दोनों को भी? नाउ इट शोज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ये जो क्वीन है फीमेल है, वर्कर है वो फीमेल है, तो वो हमेशा क्या बताएंगे? डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम. ओके, ये क्वीन भी, ये भी डिप्लॉयड. जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं फीमेल, वो भी डिप्लॉयड कंडीशन. अंडरस्टूड? तो फीमेल किस में रहेगा आकांक्षा एंड सिद्धांत? डिप्लॉयड. डिप्लॉयड. ओके, नाउ
अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल ड्रोन। ओके, ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग, जितने कितने भी फर्टिलाइजेशन हुए एग नहीं है, ओके, मतलब वो अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब उन अंडों का कुछ नहीं हो सकता है, उन अंडों में से यंग वंस नहीं निकल सकते। अंडरस्टूड? तो वो कौन है? वो है हमारे ड्रोन बी। ड्रोन बी मतलब कौन? हमारा मेल। अंडरस्टूड? एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज एन पार्थिनोजेनेसिस। ओके, जिसमें क्या है? पार्थिनोजेनेसिस मीन्स इन विच द फर्टिलाइजेशन एक्टिविटी हैज नॉट हैपेंड। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब हम जो एग्स खाते हैं व्हाइट कलर का, बराबर, वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। हाँ, वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे अभी, तो वो हमारे पास मार्केट में आते हैं, हम खाते हैं उसको। लेकिन जिसे हम कहते हैं दैट इज एन देसी एग, बराबर, जिसे हम बोलते हैं गावठी अंडा, बराबर है कि नहीं? वो अगर आप घर पे इंक्यूबेशन में रखोगे, उसे सेम टेम्परेचर दोगे विच इज ब्राउनिश येलोइश इन कलर, दैट इज व्हाट दे आर द फर्टिलाइज्ड एग। उसमें से अभी भी चांसेस है यंग वंस निकालने के, राइट? तो वैसे ही इस हनी बी में क्या है? जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो फीमेल बनेंगे, फीमेल के क्या हो सकते हैं? क्वीन एंड वर्कर्स, और जो अनफर्टिलाइज्ड है जिसमें से यंग वंस नहीं निकल सकते वो बनेंगे मेल, which we called it as a drone bee, where the fertilization activity has not happened and we call them as a parthenogenesis. Now ये drones का कैसा condition है बेटा? Drones all are in a haploid condition. Our drones are in a haploid condition. N is equal to 16. जो डिप्लॉइड में है वो कौन है? 2n is equal to 32 डिप्लॉइड, बराबर। जो हमारे हेप्लॉइड है, ड्रोन्स है, मेल्स है, हनी बी में वो कैसे है? n is equal to 16। तो आप लोगों को समझा अभी क्यों यहाँ पे हेप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों कहा गया है? आकांक्षा, सिद्धांत, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ डाउट है तो पूछो। समझ में आया है? समझा? आगे बढ़ू मैं? ओके, now these drones are produced by sperms. Okay, these drones are produced sperms by mitosis. मतलब ये जो ड्रोन्स के पास भी, ड्रोन्स कौन है? अपने मेल्स है, हेप्लॉइड कंडीशन में है, तो वो अपनी एक्टिविटी कैसे करेंगे? माइटोसिस द्वारा करेंगे। हाँ, और ये हमारे जो फीमेल्स है जो डिप्लॉइड कंडीशन में है वो क्या करेंगे? मियोसिस थ्रू करेंगे। ऑलराइट, नाउ मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस लिए हैं, दैट इज फीमेल एंड मेल। ओके, in female if you will see that all are came from the, they have been arrived from the where, from a diploid condition fertilized egg, तो इसलिए उनका मैंने देखो क्या लिखा है? 2n is equal to 32 डिप्लॉइड कंडीशन। मेल का देखेंगे आप, ड्रोन है, अनफर्टिलाइज अंडों से आए हैं, n is equal to 16, that is an haploid condition. Now 2n is equal to 32, आपको इनको क्या करना है? हेप्लॉइड कंडीशन, मियोसिस है ना, बराबर, ऑलरेडी 2n है, डिप्लॉइड है, तो मियोसिस से हुआ है, तो क्या होगा? इनका आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर, 32 कैसे होगा? अगर आप उसे हाफ हाफ करोगे तो n is equal to 16, n is equal to 16, 16 plus 16 32, समझा? तो मैंने इन दोनों को आधा किया, 2n है ना तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 32 है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? आकांक्षा समझ रहा है? नहीं समझ? Yes, ma'am. सिद्धांत समझ रहा है बेटा? Yes, ma'am. समझ नहीं समझ रहा है तो पूछेंगे, हाँ, उधर ही रोक देंगे मुझे। हाँ, अब ये मैं फीमेल की कहानी बता रही हूँ। फीमेल जी ने क्या किया? उनका 2n 32 है, तो दो बार डिवाइड होगा मियोसिस द्वारा, बराबर। 32 है तो 32 को मैं हाफ हाफ करूंगी, n is equal to 16, n is equal to 16, हेप्लॉइड हेप्लॉइड, बराबर। अब ये मेल और फीमेल के बीच में भी क्या होना है? देयर शुड बी फर्टिलाइजेशन एक्टिविटी, बराबर है कि नहीं? पॉपुलेशन होना जरूरी है तो बच्चे पैदा होंगे ना, नहीं तो हनी बी तो अंत, उसका अंत हो जाएगा। अगर हनी बी का अंत हो गया तो हमारा तो अंत पक्का है फिर, है ना? तो वैसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे जो हेप्लॉइड कंडीशन में जो है हमारे, ओके, ये कौन है? ये विदाउट फर्टिलाइजेशन वाले हैं गाइस।
समझ में आ रहा है? ये कौन है? विदाउट फर्टिलाइजेशन वाले हैं, और ये जो मेरे आधे n इज इक्वल टू 16 वाले हैं वो मेरे फीमेल्स है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मेरे एक जो n इज इक्वल टू 16 का है दैट इज डिवाइडेड ओवर हियर, एंड द मेल हु इज ऑलरेडी हैविंग n इज इक्वल टू 16 वो एक ही बार रखेगा अपना माइटोसिस का, क्योंकि वो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करने वाला बंदा है, राइट? पार्थिनो का ये हो रहा है, फर्टिलाइजेशन एक्टिविटी नहीं हो रहा है उसमें, तो इसका सिंगल टाइम ही रहेगा। सो नाउ ये फीमेल का n is equal to 16 and the male n is equal to 16 is equal to 2n, 32 diploid females are born. वापस बता रही हूँ, सुनो, फीमेल मेल, ओके, फीमेल सारे फर्टिलाइज्ड अंडों से निकले हुए हैं, राइट? ओके, दे ऑल आर फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड थिंग। मैम मेल कहाँ से आए? मेल भी एग से ही आए, लेकिन वो कहाँ से, उनके एग्स कैसे थे? मेल्स के मतलब क्या है? क्या अकेला मेल रिप्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं, उसको फीमेल की जरूरत पड़ी, बराबर है कि नहीं? तो फिलहाल के लिए जितने मेल बच्चे पैदा हुए हैं ना हनी बी के, वो सारे अनफर्टिलाइज्ड में काउंट डाउन है, क्योंकि वो फीमेल के अलावा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अनफर्टिलाइज में है इसलिए वो डिप्लॉयड कंडीशन में है, तो n इज इक्वल टू 16। फीमेल का क्या सेट है? फीमेल का है 32, ओके। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्लॉयड कंडीशन में पाई गई है। वर्कर और फीमेल, फीमेल में कौन है? क्वीन और वर्कर, ये दोनों क्या है? ये दोनों जन ऑलरेडी क्या है? एक फर्टिलाइज कंडीशंस में प्रेजेंट है, तो उनका सेट डिसाइडेड है 2n इज इक्वल टू 32, ओके। कहां से आया बेटा? आया मियोसिस के थ्रू। कहां से आया है? मियोसिस के थ्रू आया है। नाउ अब ये मियोसिस के थ्रू यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 32, माइटोसिस टू n इज इक्वल टू 16, हैप्लॉइड कंडीशन। अब 2n है तो मैं इसे 2 बार डिवाइड करूंगी। 32 का हाफ कितना है? n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहा है तो पूछो। समझ रहा है आकांक्षा? Yes, ma'am. समझ रहा है? ओके। हाँ. हाँ, अब ये जो n16 जो है वो हाफ क्या है? इनका कुछ नहीं हो सकता है, वो मेल्स है, उनको कोई भी डबल बोल रही हूँ, उनका कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो वो एक कांस्टेंट में रहे। यहाँ से जो हमारे जितने कितने भी है n इज इक्वल टू 16, और मेल का तो कांस्टेंट ही दिया हुआ है n इज इक्वल टू 16, क्योंकि वो हैप्लॉइड कंडीशन में है, माइटोसिस हुआ है, पार्थिनोजेनेसिस हुआ है, तो उनका n इज इक्वल टू 16। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कैरिड आउट एंड देयरफॉर व्हाट इट इज, the 2n is equal to 32 means meiosis activity has been carried out, sorry, and the diploid females are born. वैसे ही ये साइकिल सारे हनी बी की चलती रहती है, उनके हनी हाइफी। समझ में आया? इसलिए उनको कहा जाता है हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि आधे डिप्लॉइड कंडीशन में है, आधे हेप्लॉइड कंडीशन में है। समझे? समझ में आकांक्षा? सिद्धांत मैम हमें क्यों नहीं? क्योंकि Yes, ma'am. हम इनकी तरह प्रोडक्शन नहीं करते, हम प्योर डिप्लॉइड कंडीशन में है। अंडरस्टूड गाइस? समझा? यस मैम। चलो अब मैं चलती हूँ बर्ड डिटर्मिनेशन की तरह। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स इज ऑफ, मैंने यहाँ पे दूसरे अल्फाबेट्स लिए, दैट इज ZW एंड ZZ टाइप। इन दिस टाइप मेल्स आर होमोगैमेटिक। मेल्स कैसे हैं? यहाँ पर होमोगैमेटिक है, मतलब जो मेल्स में जो क्रोमोसोम्स है वो सेम है, which is represented as in ZZ in birds, in birds, and in females it is heterogametic. हमारे ह्यूमन बींग्स में कैसा है? उल्टा है, फीमेल होमोगैमेटिक है और मेल हेटेरोगैमेटिक है, लेकिन बर्ड्स में क्या है? ह्यूमन बींग्स से उल्टा। मेल कैसा है? होमो है, और हेटेरोगैमेटिक किसमें है? फीमेल में है। This pair of sex chromosomes are present. Okay, इसमें सिंपल है, इसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन हमें करने की जरूरत, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, क्रॉसेस कैरी आउट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सो आई हैव जस्ट टुक अ मेल एंड फीमेल एंड द नॉर्मल क्रॉस आई हैव कैरिड आउट। ओके, तो मैम हमको सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स में क्या याद रखना है?
आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मेल है वो होमोगैमेटिक है और हेट्रोगैमेटिक इट इज एन फीमेल, दैट्स इट। और आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इज आवर हनी बी एंड अ ह्यूमन डिटरमिनेशन व्हिच यू शुड बी नो। ओके, इन केस एग्जाम में बर्ड्स पूछा जाता है तो you just have to remember this, that the males are homogametic and the females are heterogametic. समझा? समझ में आया? किसी को कोई डाउट यहाँ Yes, से? ma'am. No, ma'am. Okay, sure. Now let's move towards a genetic disorders. What is the meaning of a genetic disorder? Now this genetic disorder we also called as an Mendelian disorder. Okay, इसका नाम क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से भी ये जाना जाता है। Why is this carried out? This is carried out generally there is in changes or alteration is carried out in the genes. Okay, ये क्यों होता है ये डिसऑर्डर? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जीन्स में म्यूटेशन कैरी होते हैं, चेंजेस आकर होता है गाइस। और ये जब चेंजेस होते हैं या फिर एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जीन्स प्रेजेंट है, वापस उसने वो स्पेसिफिक जगह स्किप की और तीसरे जगह पे प्रेजेंट है, मतलब अल्टरनेटिव जगह पे जीन्स प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस के जीन्स प्रेजेंट नहीं है क्रोमोसोम्स पे, तब जाके ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। Always on a chromosome, Akansha and Siddhant, remember, in a normal person, the genes are present on a chromosome in a continuous form, not on a discontinuous form. जब कभी भी ये discontinued होता है, alteration होता है, changes होते हैं, तो genetic disorder होता है. And what are the examples? The person may suffer from thalassemia, sickle cell anemia. These are the types of the anemia, huh, guys? Thalassemia, sickle cell anemia, even the color blindness is a genetic disorder, hemophilia and phenylketonuria. इसमें से आपने color blindness, hemophilia, phenylketonuria पढ़ लिया. Okay. Now we have to study about thalassemia and sickle cell anemia. मैम इसको जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा इट हैज बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर, एक भी जनरेशन स्किप नहीं करता, बहुत रेयर कंडीशन में स्किप करता है। अंडरस्टूड? और जब कभी भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया अगर जनरेशन स्किप करते हैं तो जो आगे वाली जनरेशन होगी तो उसको प्रॉब्लम में डाल देती है, क्योंकि वो थैलेसीमिया, मेजर थैलेसीमिया हो सकता है, मेजर सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, which may lead to a blood cancer. Understood? Now, chromosomal disorder. Why this chromosomal disorder is caused, guys? It is caused due to the absence or there is a presence of an more chromosomes. Okay? Mendelian genetic disorder क्या होता है? उसमें क्या कमाल होता है? जीन्स क्या करते हैं? दूर दूर डिसकंटिन्यूड मैनर में प्रेजेंट होते हैं या फिर चेंजेस आकर होता है, म्यूटेशन आकर होता है, तो आप उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कह सकते हो। ओके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है? इसमें कोई ना कोई क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाएगा, मतलब एक हाथ क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, या फिर कोई ना कोई क्रोमोसोम क्या होगा, ज्यादा इसमें प्रेजेंट होगा, एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट, so we called it as in what? Chromosomal disorder. And this all the disorder, whenever the chromosome shows absence or more, we call them as in Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter syndrome. ये syndromes हम अभी पढ़ने वाले हैं. ओके, तो आपको ये syndrome सबको याद रखने हैं, हम पढ़ेंगे. सबसे पहले I'll start with the Mendelian disorder. In Mendelian disorder, we are going to study first disease. We called it as an thalassemia. Thalassemia, it is a type of anemia. What is the meaning of an anemia? Blood disease. Where someone. हाँ, एनीमिया मतलब ब्लड डिजीज है, लेकिन क्या होता है उसमें? मतलब ब्लड काउंट में कुछ तो फर्क होता है। इन आरबीसी सेल्स देयर इज अ काउंट इश्यू. हाँ, और क्या हो सकता है? Always remember, guys, whenever there is a blood clotting is occurring, more amount of blood clotting is occurring. Okay,
फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी कट हुआ, एक फिंगर पे कट हो गया, बराबर है, एक छोटा माइनर कट है, लेकिन उस कट केस में से ओके उस पेशेंट के अंदर कब से ब्लड फ्लो हो रहा है, 5 मिनट से ज्यादा, और वो फ्लो होके जमा होता जा रहा है, क्लॉट होते जा रहा है, क्लॉट होते जा रहा है, उसे आप क्या कहोगे? एनीमिया। क्या कहोगे आप? एनीमिया। ओके, अंडरस्टूड। वापस बोल रही हूँ, whenever there is an injury and whenever there is a more amount of blood is flown and the clots are formed, clots मतलब क्या है? गार्ड बनती जा रही है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहता जा रहा है, क्लॉट्स होते जा रहा है, गार्ड बनती जा रही है, तो आप उसको क्या कहोगे? एनीमिया। There are the types of anemia. Anemia is divided into sickle cell anemia and thalassemia. Thalassemia and sickle cell anemia, this both are the major anemias. ओके, और ये थैलासेमिया वालों को अगर थोड़ा भी कट आ जाता है ना, थोड़ा भी, तो उनके ब्लड, उनके अंदर ही वो कैपेसिटी होती है कि वो आधे घंटे तक भी ब्लड आराम से फ्लो हो जाएगा, दे विल बिकम, वो बेचारे चक्कर आके गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सर्च अ ब्लड ग्रुप पर्सन, मतलब अगर वो बी पॉजिटिव वाला है, ए पॉजिटिव, तो सेम ब्लड ग्रुप का ढूंढकर हमें उन्हें ब्लड देना पड़ता है। अंडरस्टूड? सो दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट अस सी कि ये डिसऑर्डर्स होता क्यों है। थैलासेमिया इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये जो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं ना, अब हमारे जो बॉडी कैरेक्टर्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके वजह से ये थैलासेमिया पाया जाता है। What happened? There is a decrease in a synthesis of either alpha and beta globulin of what? Hemoglobin A. हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? ये अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन कहाँ से बनता है? ये अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन कोई मुझे बोलेगा कहाँ से बना? Globulins means what, guys? Hemo is equal to what? Tell me. Hemo is equal to blood. blood. Okay. Globulin is equal to, globin is equal to प्रोटीन है. protein. Hemo is equal to blood. Globin is equal to protein. So blood consists of an protein, and that protein we call them as an alpha and beta protein. तो जब कभी भी हमारे ब्लड में अल्फा बीटा ग्लोबिन मतलब अल्फा बीटा प्रोटीन का जो चेन होता है, वो क्या होता है? कम हो जाता है, डिक्रीज इन अ सिंथेसिस ऑफ, ओके, डिक्रीज मतलब कम, इसमें ये जब कभी भी मेकिंग होता है अल्फा या फिर बीटा ग्लोबुलिन चेन का, then we are prone to what? We are prone to a disease called as an thalassemia. और ये स्पेशली किस पे दिखेगा? HbA means what? hemoglobin A. अब हमारे पास में मैम HbA क्यों लिखा आपने? That is what we have a specific blood groups, guys. है कि नहीं? A, B, O, AB. तो डिपेंड अपॉन द ब्लड ग्रुप द हीमोग्लोबिन इज डिपेंडेंट, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है? HbA, मतलब ब्लड ग्रुप A है, हीमोग्लोबिन का क्या है? ग्रुप कैसा है? A है, तो क्या होगा? वैसे ही B में भी हो सकता है, O में भी हो सकता है, राइट? सो व्हाट हैपन व्हेनेवर देयर इज एन लेस, जब कभी भी ये अल्फा या फिर बीटा ग्लोबुलिन का चेन डिक्रीज अमाउंट में बनेगा, कम अमाउंट में बनेगा, so you are prone to a happening of a disease called as an thalassemia. Hemoglobin is a conjugated protein which consists of an alpha and beta chain. What is the meaning of a conjugated protein? Joint protein. Yes, they all are the joint proteins. Okay, आकांक्षा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा ऐसे करके बेटा उसका सीक्वेंस होगा, पास 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 में प्रेजेंट होंगे बेटा। ओके, जब कभी भी ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, ये हमेशा ये प्रोटीन क्या है? हमारे ब्लड में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, और ये अल्फा बीटा क्या है? उसके सब यूनिट्स है। ओके, हीमोग्लोबिन के क्या है? सब यूनिट्स है। सो द अल्फा ग्लोबुलिन चेन इज कोडेड बाय अ जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स है, उसमें से 16 नंबर वाले क्रोमोसोम्स पे आपको क्या मिलेगा? अल्फा ग्लोबिन चेन मिलेगा, और 11 नंबर वाले क्रोमोसोम पे आपको बीटा ग्लोबिन का जीन मिलेगा।
समझ में आ रहा है कहाँ पे आपके कौन से क्रोमोसोम पे अल्फा मिलने वाला है और बीटा मिलने वाला है। एंड जब कभी भी इट रिजल्ट्स इन अ डिफिशियंसी ऑफ वन चेन एंड रिलेटिव एक्सेस ऑफ अनदर चेन, मतलब अगर हमारे बॉडी में अल्फा कम बना बीटा ज्यादा बना फिर भी हमें थैलेसीमिया होना है। अगर हमें हमारे बॉडी में अल्फा ज्यादा बना बीटा कम बन रहा है फिर भी हमारे बॉडी में क्या है, थैलेसीमिया होना है। समझ में आया, अंडरस्टूड। सो इसीलिए हम क्या कहते हैं, whenever there is a decrease making of synthesis of alpha and beta globins in hemoglobin, we can suffer from a disease called as a thalassemia. इसीलिए कहा गया है कि ये जो अल्फा बीटा ग्लोबिन्स है ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है। आप अपने बॉडी में 16 नंबर वाला क्रोमोसोम देखोगे तो आपको अल्फा ग्लोबिन का जीन मिलेगा, 11 नंबर वाले क्रोमोसोम पे आपको बीटा ग्लोबुलिन का चेन मिलेगा। समझा बेटा, यहाँ तक समझ में आया है आकांक्षा सिद्धांत? यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। दिस इज नो अ मैम। डिफरेंस, ओके। दिस इज एन नॉर्मल, ये हमारे नॉर्मल ब्लड सेल्स है, ओके। और ये थैलेसेमिक है। माल्ड फॉर्म, माल्ड फॉर्म मतलब क्या है बेटा, जो शेप है हमारे ब्लड सेल्स का वो चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो, व्हाट इज द शेप ऑफ एन ब्लड सेल? आरबीसी का सेल क्या है? बाइकॉन्केव। Biconcave. Always remember the shape of our RBC cell is a biconcave. अब क्या ये बाइकॉन्केव दिख रहा है क्या? माल्ड फॉर्म, माल्ड फॉर्म मतलब क्या है, ये हमारे ब्लड सेल्स ने क्या किया है, शेप चेंज कर लिया है गाइस। ओके, सो देयर इज अ म्यूटेशन, म्यूटेट हमने पढ़ा था ना मेंडेलियन में, ये देखो क्या बोलता है ये, इट इज कॉज्ड ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन। तो क्या हुआ यहाँ पे हमारे सेल्स में, म्यूटेशन हुआ है, चेंजेस हुआ है। ओके, जो बाइकॉन्केव शेप के थे वो चेंज हो गए, दूसरे शेप के हो गए हैं, राइट। सो व्हाट हैपेंड, इट हैज बीन लीड टू अ व्हाट, थैलेसीमिया। ओके, तो ये इमेज क्या बताता है, नॉर्मल एंड थैलेसेमिक। नेक्स्ट, दिस इफ यू विल सी देयर इज अ व्हाइट ब्लड सेल्स, ये व्हाइट कलर का है, तो ये देखो ये व्हाइट ब्लड सेल्स है और ये पूरा रेड ब्लड सेल्स है। ओके, एक्सक्यूज मी। और जो कोई भी एनीमिक पेशेंट होगा, देखो ये कैसे सेल्स दिख रहे हैं एकदम, the red blood cells are what, they are not proper in a shape, right? So and this all are the white blood cells. तो white blood cells से हमारा फिलहाल के लिए कोई लेन देन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आरबीसीज के साथ देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो क्या यहाँ पे एनीमिक पेशेंट के पास ज्यादा रेड ब्लड सेल्स है? नो, देयर आर नो आरबीसीज प्रेजेंट, राइट, इट हैज गॉट डिक्रीज। ओके, तो आप खुद ही सोचो, जब यहाँ पे ही डिक्रीज हो गया है और एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड आपको लगने के बाद फ्लो हो रहा है, तो आपको चक्कर नहीं आएगी, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, बराबर है, होगा, राइट। वही अगर नॉर्मल पेशेंट को ब्लड ज्यादा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, 5 मिनट फ्लो होगा और वो नॉर्मल हो जाएगा, बराबर। सेल्स आर नॉर्मल, फंक्शनिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अब आप खुद सोचो, एनेमिक पेशेंट के पास अगर सारी चीजें कम है तो कैसे होगा? एंड दिस एनेमिक इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये गाइस, ऑलराइट, इसकी वजह से। नाउ नेक्स्ट, person who suffers from anemia, okay, always the red blood cells varies, okay, always the red blood cells what happen, it varies in size and shape। इसलिए आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे कैसे बाइकॉन्केव है, लेकिन यहाँ पर देखो साइज भी डिफरेंट हो गया, और साइज डिफरेंट हो जाने के बाद क्या हुआ है, इसमें इसमें शेप भी अलग हो चुका है। Understood? So this is a reason behind that. Massive blood transfusion is needed. Massive blood transfusion means हमेशा उनको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अगर चढ़ाया नहीं जाएगा तो कम से कम उनका ब्लड चेंज कर दो फिर। All right, you need to change the blood or you need to donate the blood to that patient who is suffering from the anemia. Massive means major. सबसे ज्यादा इनको जरूरत पड़ती है क्योंकि ब्लड फ्लो रुकता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, उनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं?
ब्लड ग्रुप अभी जो पुअर पीपल है उनको ब्लड ग्रुप चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है, पूरे बॉडी का ब्लड तो नहीं चेंज कर सकते अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी लेने बैठ जाए तो, है कि नहीं? सो दैट्स व्हाई व्हाट इट इज ऑलवेज, अब अभी फिलहाल के लिए द थिंग इज दैट वी हैव गॉट अ ट्रीटमेंट फॉर दिस. व्हाट इज इन ट्रीटमेंट गाइस? द ट्रीटमेंट इज वी नीड द पीपल गिव इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स आर प्रेजेंट ऑन दिस, राइट? इस पे एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है, इवन द इंजेक्शन इज गिवन फॉर अ थैलेसेमिक पेशेंट, so that what happened that it shouldn't be passed from future मतलब from the further generation. बच्चे को ट्रांसफर नहीं होना चाहिए कभी भी, राइट? जिस जनरेशन में है उसी जनरेशन में रुका रहना चाहिए. सेम आपको पता है हमने पढ़ा था इरेथ्रोब्लास्टोसिस, HDN, हेमोलाइटिक डिजीज न्यूबॉर्न, है कि नहीं? इसका भी क्या होता है बेटा? व्हाई इट इज कॉज्ड? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द RH फैक्टर, है कि नहीं? अब ये जो RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, बराबर, उसमें क्या है? कोई मुझे बताएगा हेमोलाइटिक डिजीज क्यों होता है? RH फैक्टर बच्चे के पास नहीं होता और मम्मी के पास होता है. तो मम्मी के पास होता है, बच्चे के पास नहीं होता, तो बच्चा कैसे नेगेटिव और मम्मा कैसी पॉजिटिव, हाँ या नहीं? हाँ. बोलो हाँ हाँ. या नहीं? मैम मदर, अच्छा हाँ, नहीं मुझे भी बोलो थोड़ा ना, कंफ्यूजन है उसमें. नहीं बोलो लाइक ना. अगर मदर नेगेटिव है और अगर बच्चा पॉजिटिव हुआ तब होता है शायद. Yes, so mother is negative and the child is positive. Understood? कभी भी RH फैक्टर में क्या है, हमेशा क्यों होता है ये RH फैक्टर, कोई मेरे को बताएगा? डी एंटीजन, हाँ मैम. है ना? तो ये जो डी एंटीजन की वजह से हो रहा है, तो इसमें क्या होगा बेटा? रेशियस फैक्टर है. ये रेशियस फैक्टर किसमें मिलता है? मंकी में, बराबर है कि नहीं? तो डी एंटीजन तो हम हर एक के पास है वैसे भी थोड़ा थोड़ा, बराबर है, लेकिन हम नेगेटिव पॉजिटिव में गए नहीं है, राइट? यहाँ पे क्या हाल है? यहाँ पर जो है वो मम्मा नेगेटिव में गई है और बच्चा कैसा है? पॉजिटिव में. समझ में आया? इट में लीड टू व्हाट? इट में लीड टू अ डिजीज. क्यों डिजीज हो सकता है इन दोनों के बीच में? क्योंकि मम्मी कैसी है? नेगेटिव में है, बच्चा पॉजिटिव में है, बराबर है कि नहीं? बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है, RH फैक्टर हेमोलाइटिक, हाँ, और मम्मी कैसे है? नेगेटिव में है, राइट? जो पहला बेबी होगा वो नॉर्मल हो जाएगा. क्यों नॉर्मल होगा? क्योंकि अभी क्या है? अभी वी आर हैविंग द इंजेक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज एन हेमोलाइटिक इरेथ्रोब्लास्टोसिस इंजेक्शन. तो वो इंजेक्शन बेबी पैदा हो जाने के बाद हम दे देते हैं, बराबर है? तो उससे क्या होगा? व्हेनेवर द सेकंड चाइल्ड इज रिप्रोड्यूस्ड, राइट? तो अगर मम्मी क्या है? मम्मी नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव RH फैक्टर में है, तो क्या होगा? पूरे एंटीबॉडीज बनाएगा. एंटीबॉडीज बनाएगा बच्चे के अगेंस्ट. समझ में आया? अगर बच्चे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने, मम्मी नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैरी कर रहा है, तो क्या होगा? बच्चा रहेगा क्या? इट में लीड टू अ डेथ ऑल्सो. समझ में आया? इसीलिए अभी क्या करते हैं, अभी एक बार बच्चा पैदा हो जाने के बाद मदर को इंजेक्शन दे देते हैं, राइट? वेदर दे टेक सेकंड चांस और नॉट, सो इट शुडंट बी हार्मफुल टू एनी काइंड ऑफ एन किड. So the child shouldn't suffer from hemolytic erythroblastosis disease. Understood? तो उसमें भी क्या होता है? उसमें भी अगर ऐसा हो गया, right? In this condition, if we doesn't understand, then what will happen? What can happen? The child is born, but the child will require the blood transfusion. वरना वो बच्चा भी एनीमिक हो सकता है. समझ में आया? आकांक्षा समझ में आया बेटा? क्या हाल है? यस मैम. सिद्धांत समझा तुमको? यस मैम. Okay. Now, in this thalassemia, in a normal adult, this is equivalent to 10 to 20 units. कितना अल्फा बीटा का ग्लोब्यूलिन्स का चेन प्रेजेंट होना चाहिए? 10 to 20 units. इतने इसमें क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए. So thalassemia is quantitative abnormality of polypeptide globulin chain synthesis. क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस चेन बराबर से नहीं बन रही है, इसीलिए ये क्या है? ये थैलेसीमिया डिजीज हो रहा है. Because in our blood there should be a proper subunits of alpha and beta chain should be present. If it is not present, then the person may lead to what? Then the person may lead to a thalassemia. Why? Because there is no proper synthesis of globin chains are made.
समझ में आया? एक ही डिजीज है, समझा? कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। समझा आप लोगों को थैलेसीमिया? यस मैम। ओके, मैं आगे बढ़ू क्रोमोसोमल डिजीज के तरफ। All right. Now this chromosomal disease, first disease which we called it as an, that is a Down syndrome child. Okay, कैसे दिखते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे? इस तरह से आपने देखे हैं ना, दिखते हैं, अभी भी दिखते हैं, right? Now also it is seen into our, you can see आजू बाजू में होते हैं, right? So this is a Down syndrome child. Now let us start. This Down syndrome is what it is also called as an 21 trisomy. Okay, means 46 plus 1 extra chromosome is added, है ना? So ये क्यों हुआ है? एक्सेस क्रोमोसोम की वजह से, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से बॉडी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से ये डाउन सिंड्रोम क्या है? This Down syndrome disease has been occurred into a human body. All right. Now, this syndrome was coined by, described by a scientist, हमने already पढ़ा है, called as a John Langdon Down. Okay, scientist जी का नाम था John Down. उनके नाम से हमने ये डाउन सिंड्रोम निकाला. Why it is caused? It is caused by aneuploidy, means which is due to the addition or deletion of one or two chromosomes. Okay, हमारा diploid set of chromosome होता है, उसमें एडिशन होगा या डिलीशन होगा, लेकिन डाउन सिंड्रोम हमेशा एडिशन ऑफ द क्रोमोसोम्स के वजह से होता है. इसलिए यहाँ पे कहा गया है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर. ओके, 21 है, 21 ट्राइसोमी, मतलब 21 के बाद और 3 ऐड किया तो बेटा कितना हो जाएगा? 22, 23, 24 एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना, है ना? कुछ डिलीट नहीं हुआ, एक्स्ट्रा ऐड हुआ. यहाँ पर भी अगर हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम के हिसाब से देखने जाएंगे ना तो 46 प्लस 1 47 बना, है ना? तो क्या हुआ? एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐड हुआ. सो व्हाट विल हैपन? इट विल लीड टू अ डाउन सिंड्रोम. It shows the presence of copies of 21 chromosome instead of homologous pair. मतलब आपको दिखाते वक्त कितना दिखाएगा? मैं सिर्फ 21 क्रोमोसोम हूँ, मेरे पेयर सेम है, लेकिन आप जब देखोगे, आप जब सोनोग्राफी निकालोगे बच्चे की, मतलब मम्मी की जब सोनोग्राफी निकालोगे, तब आपको हकीकत में समझ में आएगा 21 के साथ और 3 एडेड है, 46 क्रोमोसोम के साथ 1 एडेड है. समझ में आया? ऐसे दिखते वक्त आपको वो नॉर्मल बच्चा दिखेगा, राइट? लेकिन जब आप उसकी जेनेटिक स्टडी करोगे प्रॉपरली, आप एमनियोटिक फ्लूइड लोगे बच्चे की. एमनियोटिक फ्लूइड मींस व्हाट बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड मींस द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनटू अ मदर्स वूम. ओके, मदर्स वूम मींस मदर्स के जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उनके वूम में क्या होता है? प्लासेंटा. प्लासेंटा के अंदर फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. और वो फ्लूइड लेने के बाद वो सारे फ्लूइड, उस फ्लूइड में बच्चे के सारी हिस्ट्री होती है उस फ्लूइड में, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं बेटा कॉमन लैंग्वेज में? वाटर बैग. अंडरस्टूड? वो अगर आप एमनियोटिक फ्लूइड लेते हो और फिर टेस्ट करते हो तो आपको पता चलेगा कि बच्चा नॉर्मल है या फिर किसी सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाला. Understood? So always if there is a doubtful cases whether the child is normal or the child is going to born with some syndrome, so what do the doctor do? Doctor take a small amount of amniotic fluid because there shouldn't be any kind of decreases into that amniotic fluid. It provides nourishment to a child. All right. So hence such disorder we called it as a trisomy. Now what happened? It is due to the failure of separation of chromosome. Chromosome separate होना भूल जाते हैं. इसलिए आप कभी भी देखो, हम जब फ्लो चार्ट बनाते हैं, हम जब पूरा जेनेटिक चार्ट बनाते हैं, in this way when we make, बराबर, ये जो प्रोसेस हम बनाते हैं, ये पूरा जो मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ, तब देखते हो यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है, बराबर. ये देखो यहाँ पर, see, I always say, बच्चा, you have to segregate the gametes. Why to segregate the gametes, बच्चा? For the reason behind that, so that the genetic material should be exchanged properly.
And whenever the genetic material is not exchanged properly, it may lead to certain kind of a syndrome. Understood आकांक्षा and सिद्धांत? समझ में आया? Yes, इसीलिए हमेशा, हाँ, इसीलिए हमेशा कहती हूँ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में गैमेट्स का सेपरेशन होना बहुत ही जरूरी है. अगर नहीं हुआ ना तो क्या होगा? सिंड्रोमिक हो जाएगा. In this occurrence, extra chromosome in diploid क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम सेट्स क्या होते हैं? डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं. लेकिन आप उस डिप्लॉइड से क्रोमोसोम में अगर देखोगे तो साथ में 1+1 एक प्रेजेंट होता है. इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमिक डिजीज. क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. What are the symptoms of this Down syndrome, guys? The symptoms of this Down syndrome is facial features. मतलब शक्ल से वो बच्चे कैसे दिखेंगे? Folded skin over the eye corner. अगर आप यहाँ पर देख रहे हो folded skin, ये देखो, this is an eye corners, okay? मेरा यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है वहां पे देखो. This is an what? This is an eye corners. आप देख रहे हो कैसे फोल्ड हो रहे? हमारे आई कॉर्नर्स देखो स्ट्रेट है कि नहीं? बराबर है. कुछ रिंकल्स है? नहीं, फिलहाल के लिए नहीं. हम जब एजेड हो जाएंगे तब रिंकल्स आएंगे. अभी फिलहाल के लिए स्ट्रेट है. लेकिन यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे देखो कॉर्नर्स में थोड़ा रिंकल्स है. बच्चा छोटा है लेकिन देखो कैसे रिंकल्स है, फोल्ड फोल्ड जैसे, झुरिया झुरिया जैसे, है ना? सो दिस इज व्हाट, दिस इज इन फर्स्ट सिम्पटम. देन व्हाट, दिस रिजल्ट्स इन डाउनवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आईलिड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन डाउनवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आई? देखो इनके आईलिड्स कैसे बेटा, इस तरह से देखो स्लैंटिंग है. ये जो आईलिड्स होते हैं ना ऐसे नीचे स्लैंटिंग होते हैं उनके. हमारे है क्या? हम स्ट्रेट है कि नहीं? राइट. So what, there is a folded skin, the eyelids are into a slanting condition. बराबर. ये normal people में होता है? No. Face is typical. Typical means flat. थोड़ा flat जैसा होता है, हमारी तरह oval नहीं होता, round नहीं होता है. Right. After that, nose, flat nose हमारा कैसा है? Straight है. आप हमारी border line देखेंगे straight है, लेकिन आप इनकी बॉर्डर लाइन देखो बेटा कैसी है? फ्लैट है. ये नोजड्रिल्स देखो कैसे फ्लैट है. हमारे कैसे है नोजड्रिल्स? सीधे है ना? राइट. लेकिन इनके नोजड्रिल्स कैसे बेटा? फ्लैट है. राइट. सो इसलिए ओपन माउथ. हमेशा डाउन सिंड्रोम के बच्चों का माउथ कैसा होगा? ओपन. भले ही वो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे खेल रहे हैं, वो बैठे हैं, हमेशा ओपन कंडीशन. हमारा कब होता है? हम नॉर्मली ऐसे ओपन करके बैठते क्या? नहीं. हम जब गहरी नींद में चले जाते हैं तब हमारा माउथ ओपन होता है. बराबर. या फिर कोई भी पर्सन, नॉर्मल पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो नॉर्मल ऐसा मुंह खुला रह जाता है ना? ऐसे नॉर्मली नहीं होता. ये बच्चे, आप वो शांत भी बैठेंगे, जग रहे हैं, फिर भी उनका मुंह खुला ही रहेगा. एंड टंग इज प्रोट्रूडिंग. टंग इज प्रोट्रूडिंग मीन्स व्हाट बेटा? ये देख रहे हो इस बच्चे की, देखो टंग कैसे बाहर है. बराबर. हमारी टंग कब बाहर आती है? जब हमें कुछ क्या करना होगा, इफ यू वांट टू टेस्ट समथिंग, राइट. बट अवर टंग इज स्ट्रेट. ऐसे गिरती हुई टंग है क्या? नहीं. दिस किड्स आर हैविंग दी प्रोट्रूडिंग. प्रोट्रूडिंग मतलब क्या होती है? फ्लैट होती है. हमारी कैसी है? देखो टिप थिन है कि नहीं? उनकी कैसी होती है? फ्लैट होती है बेटा. और ऐसे हमेशा नीचे गिरती हुई रहती है. अंडरस्टूड. सो व्हेनेवर द टंग इज फ्लैट and always in a falling manner out of the mouth, okay, बाहर होती है, तो आप उसे कहोगे protruding tongue. नॉर्मल पेशेंट्स में नहीं दिखती है वो. राइट. मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल ग्रोथ ज्यादा नहीं होता है. द ब्रेन इज नॉट इन अ डेवलप्ड मैनर. ड्यू टू स्केलेटल डेवलपमेंट दे हैव अ शॉर्ट स्ट्रेचर एंड रिलेटिव स्मॉल स्कल. आप इनका स्कल का भी स्ट्रक्चर देखोगे तो छोटा होता है. और ये जो नेक स्ट्रक्चर आप देखोगे बेटा, हमारा देखो ब्रॉड है, बड़ा है ना? इनका कैसा है बेटा? ऐसा फ्लैट है और शॉर्ट जैसा है. Understood? It is in a shorter manner, right? Why? Because the child is mentally undeveloped, okay? Developed condition में नहीं है. And even क्या है? उनके skeletal जो muscles है वो भी developed manner में present नहीं. Right? That's why this kind of in what? This kind of in conditions they have. Flat hand characteristics with runs all the way across the palm, which we called it as an simian crisp. Simian crisp मतलब क्या होता है बेटा? मैं इनके हाथ नहीं दिखा पा रही हूँ आपको. देखो हमारे पाम्स है ये पूरा. बराबर. दिस इज अवर हैंड, राइट. और ये हैंड का ये पूरा पाम है. अब ये पाम अगर आप देख रहे हो तो आप देख रहे हो, देखो ये पाम्स पे, ये फिंगर्स पे प्रॉपर लाइनिंग प्रेजेंट है ना बेटा? अब ये जो हाथ की रेखा है वो भी प्रॉपर है. लेकिन आप इनके अगर फिंगर्स देखोगे तो फ्लैट होते हैं
और इनके जो क्रिसिस मैंने लिखा है ना, क्रिसिस मीन्स व्हाट, ये रेखा है, ये प्रेजेंट नहीं होते हैं डाउन सिंड्रोम में। अंडरस्टूड, समझ में आया? इसीलिए उनको क्या कहते हैं हम उनको कहते हैं सिमियन क्रिस। सिमियन क्रिस मीन्स व्हाट, ये जो उनके हाथों की रेखाएं होती है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको नहीं होते हैं हाथों की रेखाएं उन बच्चों को। समझ में आया? They have a short lifespan also. Always they have what? They have a short lifespan. Specific years तक जीते हैं, उसके बाद उनका डेथ हो जाता है। समझ में आया guys? यहाँ तक समझा है डाउन सिंड्रोम? So Down syndrome is what? Down syndrome, it is a first, that is what we have seen, chromosomal disorder. Why it is happening? It is happening due to the addition of the chromosome. We call them as an trisomy. 21 trisomy, 21 है उसमें और एक आपको 3 ऐड करने हैं। अंडरस्टूड? या फिर हर क्रोमोसोम में क्या होगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मतलब हम 2n है ना, डिप्लॉयड है, तो इनके पास 1+1 और प्रेजेंट हो। समझ में आया आकांक्षा से? कुछ डाउट है आकांक्षा बच्चा? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, ये हेरिडेटरी होता है, मैंने आपसे एक बार कहा था डाउन सिंड्रोम हेरिडेटरी होता है। ज्यादातर कब होता है बेटा डाउन सिंड्रोम? whenever there is a consanguineous marriages. consanguineous marriage मतलब क्या होता है? कजिन्स के बीच में मैरिज होती है, बराबर? मतलब हम कहते हैं ना दैट इज मैरिड विद अ बुआस डॉटर और बुआस सन और समथिंग लाइक, यू नो, वैसे ही जैसे फैमिली में मैरिजेस होते हैं, वी कॉल्ड इट एज एन कंसैंगुइनियस मैरिज, राइट? कजिन्स के बीच में मैरिजेस हो रही है, राइट? So due to this, these syndromes are much more prone to happen. Okay, ये syndromes ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है, किसी ना किसी में तो वो निकल ही आना है, जीन एक्सप्रेस करना ही है। समझ में आया? तो वो क्या होता है, ये ऐसे कुछ सिंड्रोम में जाके लीड हो जाते हैं, राइट? नाउ आई हैव अ सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी। ओके, मतलब या ओके आकांक्षा, यू मे गो। Yeah. I'll stop here only. Yeah, I'll stop here only, beta. Don't worry. Okay, ma'am. Okay, I'll stop here only. I'll stop the Siddhant also. You have any kind of a doubt for tomorrow? Okay, ma'am. No, ma'am. If I have, I'll text you. Okay, okay. So tomorrow's timing, sir will announce to you. Okay, beta? Yeah, ma'am. Yeah. Okay, Akansha. Okay. Bye, ma'am. Bye, beta. Bye. Thank you. Siddhant, do you have any kind of a doubt for tomorrow? मैम कल डायग्राम आएगा? हाँ, डायग्राम बनाना है। हाँ, बनाना ही है ना, मैंने तुझे वही बोला, हर एक इसमें आपको डायग्राम बनाना है बेटा। डायग्राम कहीं पे भी छोड़ना नहीं, मैंने लिखा नहीं है फिर भी आपको बनाना है, इसलिए मैं हमेशा नोट में लिखती हूँ, आपने देखा होगा that all of the diagrams are compulsory, draw the diagram wherever it is necessary. ओके, मैं वापस एक डायग्राम का टेस्ट भी लूंगी, लेकिन कब? ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, ताकि मैं चाहती हूँ तुम लोग क्रोमोसोम्स के डायग्राम्स के साथ फॉर्म रहो। मैम और एमसीक्यू में क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, मत लिखो। ओके, मत लिखो, लेकिन एक ध्यान रखना, अल्फाबेट्स के साथ, अभी फॉर एग्जांपल बी है, हाँ तो हाँ, बी का आंसर लिखेंगे। हाँ हाँ, बी मैंने लिखो, लास्ट टाइम अल्फाबेट क्वेश्चन भी ज्यादा लिखा था। नहीं लिखना है बेटा, मत लिखो। ओके, आप किसी का भी क्वेश्चन मत लिखना, ओनली रिमेम्बर वन थिंग, अगर डायग्राम आता है, डायग्राम को मैं लेबलिंग करने बोलती हूँ तो सीक्वेंसली लेबल करो। समझ में आया? बाकी किसी का क्वेश्चन मत लिखो, बराबर से क्वेश्चन नंबर लिखो। एनी 2 होगा तो सेकंड थर्ड लिख रहे हो तो लिखो आंसर सेकंड, वो लिखो आंसर थर्ड, वो लिखो। ओके, किसी का क्वेश्चन मत लिखो। एनी डाउट सिद्धांत? कुछ है डाउट अभी आपको? नहीं। अभी फिलहाल के लिए नहीं है? हाँ। Okay, bacha. All right. So we will be ending up the lecture over here only. All right. Be Okay, prepared for your test. Okay, Siddhant? yes, ma'am. Okay, bacha. Chalo. You may Bye, leave. ma'am. Bye, beta. Bye. Bye. Thank you.